आगे हम लोगों को बढ़ने दीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनको 2-4 क्लास में समझने का मौका दीजिए इनिशियल लेवल पे, उसके बाद में वो आपके साथ साथ जो है यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आपको कि सिनॉप्सिस के कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी एडिंग्स होती हैं, और इसके अलावा इनमें हमें क्या क्या देना होता है। तो कल नंबर फर्स्ट था कि सिनॉप्सिस है या आपका रिसर्च प्रपोजल है तो उसका टाइटल डिसाइड कैसे करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट हमें बताए जिसने कि कल टाइटल को लिखा हो। कल हमने काम दिया था आपको कि 2-3 टाइटल लिखेंगे अपने सब्जेक्ट से संबंधित। ओनली वन स्टूडेंट। हाँ जी सर, बोलिए। Yes, sir. I'm from City Foundation. जी सर। My subject is organizational learning in Nepal. ओके ओके। Comparative study of public and private sectors. My subject. Okay, sir. Very good. Okay, sir. Sir ji, can I say something? Yes, I'm Myself Umesh. City Foundation. Sir, my title of my research work is Impact of Remittance in Nepalese Economy, Macroeconomic Impacts of Remittance in Nepalese Economy. So I'm from City Foundation, Nepal. Very good. Myself Umesh Sharma, sir. Sir, my topics are 3 topics I have taken into consideration. First one is human resource practice and its impact on organization's performance. Second one is job satisfaction and its impact on employees' commitment, and quality of work life and its impact on employees' motivation. Out of these 3, which one will be the most feasible? I will go through that one, sir. Thank you so much, sir. Very good. You should concentrate on one topic. So yes, at this most time, likely you human resource practice. I'll go, sir. Yes. So you are advised to search some review articles related to. Sir, I have already searched. Very good. In context of this one. Very good. So I will try to give you a chance to present your synopsis at large. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Okay, sir. After 1 week, I will give you a chance to. Yes, very good. Yeah, you. Yes, good morning, sir. I'm Majid from Nigeria. So my topic is artificial intelligence in business transformation according to my country case study. Yes, very good. So you should try to collect more and more literature. Okay, then only you will be able to write 3 and 4 objectives. Okay, so I am coming to the list. Sir, मैंने during the entire project. Yes. सर मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं. First one is the impact of COVID-19 on advertisement and marketing challenge post COVID-19 lockdown. And second one is impact of COVID-19 on Indian economy. Very good. Third one is how is the coronavirus pandemic changing HR's role. And fourth one is human resources management in the COVID-19 era, new insights and management opportunities. ठीक है, तो ये आपने 3 देख लिए हैं, 4 आपने जो टॉपिक लिए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आपको क्या करना है कि देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, एचआर में है कि किस में है, उसी पे जिससे कि आपको आपके करियर में भी लाभ हो उससे। इसके साथ साथ में आपका जो रिसर्च है उसके लिए कहाँ पे कैसे आप रिसर्च कर पाओगे, उसके प्लान के लिए आपको क्या करना है। ऑलरेडी जो पब्लिश है आर्टिकल्स, नंबर 1 तो आपको देखना होगा कि जो अवेलेबल रिव्यू आर्टिकल है आपके टॉपिक से संबंधित, उनको आज से ही आप सर्च करिएगा। रिव्यू में होता है कि अभी तक आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, आपने जो टॉपिक लिया है, अब इसमें जैसे ही आप रिव्यू देखोगे और लिटरेचर सर्च करोगे, आपको मालूम हो जाएगा कि इस टॉपिक पे कितना काम किया है और इसके अलावा कौन सा काम अभी नहीं हुआ है। आपने जो टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक आपके रिपीट नहीं होने चाहिए।
ठीक है। अगर कहीं मिलता जुलता टॉपिक भी है तो उसमें देखिएगा कि दूसरे वर्कर ने क्या काम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। ओके सर, ठीक है। सपोज करिएगा कि आप एचआर में ही काम करना चाह रहे हो, तो एचआर के अंतर्गत क्या क्या आता है? जॉब से सेटिस्फैक्शन है, इसके अलावा एम्प्लॉय की जो employees motivation factors and dissemination of knowledge and information in Nepalese public and private sectors. And third one is to study the environment for organizational learning in Nepalese public and private sectors. And last one is to examine the relationship between organizational learning and organizational performance in Nepalese public and private sectors. These are my objectives. So I think some of Good morning, sir. students Good morning, sir. have good knowledge regarding to the Yes. synopsis as well as Sir, may I say one yes, objective from my yes, side? Yes. you can complete. Yes, I have also selected the topic, that is, I told you the macroeconomic effects of remittance in Nepalese economy, and I have shared the objective as like to examine whether the remittances have effect on private consumption of Nepalese economy or not, to identify whether the remittances have effects on private investment in Nepal, to explore the effect of remittance on Nepal's economic growth, and to test whether the Objectives of the study. Next, review and literature. Next, material and methods. In material methods, you have to describe the process of the data collection as well as the number of samples, sample size. Means if you are related to HR or if you are related to educational background studies such as students study as well as teachers is related study, then you have to mention the number of samples. Okay, as we have already discussed in previous lecture, if the number of sample is more, then the chance of standard error will be very less. Okay, so the number of samples should be appropriate. Next point is the analysis of the data. So there are so many tools are available, so many software are available to analyze data, and if you don't have proper idea for the data analysis, then you can contact to a statistician. So this is not a very big problem. There is no need to worry. कोई भी हर एक सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होता है। आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो। जब आपका मेन काम है कि ऑथेंटिक डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। कहाँ से आप देखोगे कि डाटा कैसे कलेक्ट किया है? प्रीवियस वर्कर्स के द्वारा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है, पेपर्स है, उसमें देखिएगा। ठीक, जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेपर होंगे, उसके बाद मैं यही आपसे लिखवाऊंगा आपके द्वारा ही कि देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करते हैं, रिव्यू एंड लिटरेचर में कैसे देना है, ऑब्जेक्टिव में क्या देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर 1, आपके पास ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप तभी लिख पाओगे जबकि आपने नियर अबाउट 20 to 50 रिसर्च आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल और इसके अलावा ये रिव्यू आर्टिकल आपने डाउनलोड किए होंगे। तो ये काम आज ही आप कर लीजिएगा। दूसरा, कल आपसे मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें डे बाय डे आपको ये पॉइंट लिखने हैं। इसके अलावा आपने क्या किया है वो उसमें लिखिएगा। इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आपका अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक, इंटरेस्ट अपने आप आएगा। नेक्स्ट, जो
है कि डाटा जनरेशन के लिए क्या करना है आपको, बताइएगा। जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सिनॉप्सिस लिख ली है सिटी फाउंडेशन से, तो बताइएगा कि मटेरियल एंड मेथड्स में उन्होंने क्या लिखा है। एनी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट अगर स्टूडेंट को समझाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, हाँ जी बोलिए। Tools are there in methodology. Then how do we study about the research and the data collection? Then tools also you have to include there. Yes, sir. Theoretical Yes, tools. you have to. There are two types of synopsis. One synopsis for scientific data collection, and second synopsis is related to English, Hindi, and literature subject. So I will try to discuss both types of synopsis. Okay. Okay, So first, sir. I will try to discuss a synopsis regarding science subject, and then we will discuss a synopsis related to education subject. So we'll try to cover all subjects. Okay, and some specific professors lecture will be organized to solve your problem. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन से कल आपको हमने बताए थे इसके कंटेंट्स ऑफ योर सिनॉप्सिस। बताइए एनी स्टूडेंट, कल हमने आपको नोट करवाया था, एक बार फिर से आप नोट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में आप दे सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, इसके बाद आप हाइपोथेसिस दे सकते हो, उसके बाद रिव्यू एंड लिटरेचर दे सकते हो, फिर मटेरियल एंड मेथड हो गया, उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा ये प्रपोज्ड आउटकम ऑफ स्टडी, फिर टेंटेटिव चैप्टराइजेशन जो यहाँ पे ये हेडिंग है, ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं उनमें टेंटेटिव चैप्टराइजेशन आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं उनमें टेंटेटिव चैप्टराइजेशन आपको देना ही है। उसके बाद में आपके आते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव दे सकते हो, और उसके बाद में यदि इंट्रोडक्शन में नहीं देना चाहते हो तो उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव्स अलग से भी एडिंग दे सकते हो। ठीक, फिर रिव्यू एंड लिटरेचर लिख सकते हो। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। ठीक, लेकिन क्वालिटी ऑफ सिनॉप्सिस जो है उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। वो आप कैसे लिख पाओगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ये कंटेंट्स, हेडिंग्स। आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक कोई सैंपल। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे सर, यस, हाँ जी बोलिए सर। My topic is what is the impact of technology in the education sector in the far western region of Nepal before and after COVID? सर। यहाँ पे आप जो कैसा है रहेगा? क्वेश्चन मार्क से नहीं स्टार्ट कर पाओगे, कोई क्वेश्चन से नहीं। एक बार फिर से इसको रिपीट करिएगा, अपने टॉपिक को फिर से रिपीट करिए। वाट हटा दीजिए, इम्पैक्ट से आप स्टार्ट करिएगा। अच्छा, impact of technology in the education sector in the far western region of Nepal before and after COVID. ठीक है, इतना है सर। ठीक है, आपका दिस इज ए गुड टाइटल ऑफ योर रिसर्च। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। I am from the City Foundation of Nepal, sir. Yes, yeah, you should. I am selected 3 points of the topic, sir.
Yes. One is the political impact to natural resources society of Nepal. Yes. Other one, soil related to agriculture development and society. Yes. Other one, natural resources impact to social development in Nepal. मैं ये Yes. 3 टॉपिक सेलेक्ट किया सर. इसमें कौन सा लिख सकता है सर? इसमें से आपको अब एक काम और करना है. आप देखिएगा कि रिसर्च गैप क्या है. जो आपने ये तीनों टॉपिक दिए हैं, इस पे ऑलरेडी कितना वर्क हो चुका है. ठीक है. जिस टॉपिक पे वर्क नहीं हुआ है उसको आपको लेना है. रिसर्च गैप देखिए. यदि जो ऑब्जेक्टिव आपने पहले ये टॉपिक लिया, तो टॉपिक के बाद आप ऑब्जेक्टिव लिखिए. ऑब्जेक्टिव के बाद में देखिए जो ऑब्जेक्टिव आप ले रहे हो उस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है. ऐसा तो नहीं प्रीवियस के किसी स्टूडेंट ने वही काम किया हो जो आप ले रहे हो. ठीक. तो ओरिजिनलिटी ऑफ योर रिसर्च भी होना चाहिए. तो यहाँ पे आप लिटरेचर एंड रिव्यू से देखोगे कि रिसर्च गैप क्या है, क्या काम नहीं हुआ है, वो आप करोगे. तो इससे क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी, इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क. ठीक है. जिसका आपको जीवन वर्क फायदा होने वाला है. थैंक यू सर. थैंक यू हाँ सर. जी. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर हम दीपेंद्र यादव बोल रहे हैं नेपाल से सर. यस. बोलिए. मेरा मैथमेटिक्स है सर. मेरा जी. टॉपिक न्यूट्रोसोफिक मैथमेटिक्स है मेरा सर. हाँ जी. अभी और सब सब्जेक्ट का सिनोप्सिस साइंस में थोड़ा फर्क होता है सर. उसमें भी मैथमेटिक्स में हम सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कुछ हम सिनोप्सिस मंगवाए हैं. उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में 7 है सर. 7 फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है. सेकेंड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च स्टडी है. तीसरा सारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रपोज रिसर्च है. हाँ जी. हाँ जी. रिव्यू लिटरेचर है. पांचवा आपको रिसर्च मेथोलॉजी है. हाँ जी. सिक्स में आपको चैप्टराइजेशन है. और लास्ट में आपको बायोलियोग्राफी है. ठीक है. हाँ जी. आपको ये सभी चीजें उसमें लिखनी है. जी 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 जी. करीब सर हम तैयारी कर चुके हैं हम अपना सिनोप्सिस. हाँ जी. कि 1 वर्ष हो गया मेरा सर. एडमिशन करीब मार्च में कराए थे सर. कोई बात नहीं, आप बताइए. हाँ जी. मेरा गाइड भी डॉक्टर पूनम यादव है सर मैथ के. हाँ जी. तो अब कब आप लोग बुलाइएगा वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए? बिल्कुल बुलाएंगे. ठीक है. आपका जो आपने सिनॉप्सिस बना रखी है, तो लास्ट के लेक्चर्स में हम आपको जो है चांस भी देंगे यहाँ आपकी सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करवाने के लिए. ऑनलाइन ही सर. ऑनलाइन ही. हाँ जी. ऑनलाइन. ठीक है. जिससे कि आपके साथ के जो लोग हैं उसमें यदि कहीं जो है कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है. स्टूडेंट को अगर समझाता है तो बहुत अच्छी से समझ में आता है. जी. आज मैडम को हम बैठा दिए हैं सिनॉप्सिस जो तैयार किए हैं देखने के लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा. और उसके बाद में फिर बात होगी. ठीक है. ओके. वेरी गुड. तो आज मैं एक सिनॉप्सिस आप लोगों के सामने अभी डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे कि कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सके. ठीक है. एक स्टूडेंट की सिनॉप्सिस है. सिनॉप्सिस है a study of medicinal plant present in the Jharkhand area and its use for the treatment of common human diseases. ठीक है. तो इसमें क्या है कि एक्चुअल जो टाइटल है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ. ठीक. इसमें क्या क्या इन्होंने सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना टॉपिक. स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट प्रेजेंट इन झारखंड एरिया एंड देयर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजेस.
ओके, तो ये एरिया कहीं का भी हो सकता है, आपने नेपाल में स्टडी कर सकते हो, श्रीलंका में स्टडी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने ये जो है लिया है सिनॉप्सिस को। इसमें नंबर 1 क्या हो गया, जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देना होगा, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देना होगा। ठीक, मेडिसिनल प्लांट का हमने देखा। उसके बाद में आपके कंट्री में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट पे काम हुआ है, उससे संबंधित आपको रिसर्च के आर्टिकल डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में ये देखिएगा कि रिसर्च डिजाइन हम करते कैसे। ठीक, जहाँ के जिस भी कंट्री में, जिस भी स्टेट में है, वहीं पे आप काम स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया अभी, मैं मेडिसिनल प्लांट पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, 2-4 डिस्ट्रिक्ट की स्टडी कर सकते हो, और रिसर्च के आपके पास जो अवेलेबल संसाधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर आगे क्या कर सकते हैं, जो दूसरे देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड किए हैं। ठीक, और किस तरीके से स्टडी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आना है, मेडिसिनल प्लांट पे अगर वर्क है तो मैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया है। मेडिसिनल प्लांट हैव बीन यूटिलाइज्ड टू ट्रीट ए वैरायटी एलिमेंट्स सिंस, ठीक है, सिंस में मैनी डिकेड्स, और जो कुछ भी आपके पास जो डाटा है वो आप उसमें दे सकते हो कि कब से इनका उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको, और इसमें इंट्रोडक्शन आपको बताता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका 2 पेज से लेके 4 पेज में ही आपका जो है कवर हो जाना चाहिए। ठीक, अब इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में आप और क्या दोगे, क्या क्या रिसर्च प्रीवियस में हुई है उसका थोड़ा सा डिटेल आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट कैन बी used to cure a wide range of ailments. ठीक है, in the last century this work was done by Ram Kumar and Shyam Kumar या P कुमार या, ठीक है, राज कुमार, जिन्होंने भी काम किया है वो आप उसमें दे सकते हो। ब्रैकेट में किस ईयर में काम हुआ है वहां पे आप लिख सकते हो उनका। ठीक है, इस तरीके से जो भी टॉपिक है उस पे क्या काम हुआ है थोड़ा आप इसमें देख सुन सकते हो। फिर बाद में इंट्रोडक्शन में ही आपको आपका जो आपने ले रखा है टॉपिक, ठीक, उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, लास्ट का पैराग्राफ है वो सिग्निफिकेंट ऑफ योर स्टडी से संबंधित होगा उसमें। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट आप दोगे। जैसे इन्होंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नियर अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, जहां से भी आप कोई डाटा दोगे तो उसका वहां पे रेफरेंस भी आपको देना होगा। आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। जो भी आपने, जैसे इन्होंने मेडिसिनल प्लांट पे काम कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंस में, सिग्निफिकेंट में, दिस स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट एज ए सोर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन इज बेस्ड on the fact that they are natural, have no major side effects when applied to treat the different diseases in humans. ठीक है, इसके बाद में फिर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया के बारे में बताओगे। ठीक है, जिससे कि सपोज करिएगा यदि कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो वो कैसे लिखेगा, द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ए वेल्थ ऑफ इंडिजिनस नॉलेज फॉर फूड एंड मेडिसिन। ठीक है, इंडिजिनस पीपल रिलाई ऑन फॉरेस्ट, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। ओरल कम्युनिकेशन हैज ट्रेडिशनली
been used to convey tribal wisdom down through the generation to generation. ठीक है, ये आप देख सकते हो कि बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि वैद्य के द्वारा दिए जाते हैं, जिनका कि कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक, तो क्या है, इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम है कि जो अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका करना, ठीक है, फिर आगे उसका पब्लिकेशन करना। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि रिसर्च गैप क्या है आपके एरिया में, क्या रिसर्च अभी तक कि आप जहां रहते हो उस स्टेट की क्या कंडीशन है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है आज की डेट में। और यदि कोई मेडिकल साइंस का है, स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है, तो वो उसमें और देख सकता है कि कोरोना से ही देख लीजिएगा कि कितने टॉपिक निकलते हैं। जैसे कि कोई स्टेट का स्टूडेंट है तो वो देखेगा कि कोरोना से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, किस एरिया में इन्फेक्टेड हुए, एज ग्रुप क्या था उनका, चिल्ड्रंस में इन्फेक्शन हुआ उसके बाद कितने परसेंट डेथ रेट था, ठीक है, एडल्ट्स में क्या था, ठीक है, बुजुर्ग लोगों में क्या है, जैसे कि देखा जाएगा आपका 30 to 60, 60 to 80, ठीक, देख लीजिएगा। इस तरीके से कैटेगराइज करके आप ज्यादा से ज्यादा डाटा कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक, तो दूसरा आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उनका कितने % लोगों ने लाभ ले पाया। ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे, बहुत से लोग हैं, सभी सुविधाएं हैं, फिर भी उनको वैक्सीनेशन अभी तक 70% वैक्सीनेशन 75% हो पाया है। ठीक, तो ये देखेंगे कि आपका रुचि क्या है, इसके अलावा कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, डाटा जनरेशन आसानी से कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार डिफरेंट होगा। देखेंगे आप केवल एक क्या है, कोरोना पेंडेमिक, ठीक है, इफेक्ट इसका कहाँ हो रहा है, सभी सेक्टर्स में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक देखोगे, टॉपिक के बाद में फिर देखोगे आप रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया कहाँ पे आपको रिसर्च करना है, फिर आप क्या देखोगे कि ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में जैसे इन्होंने सिग्निफिकेंट अपने रिसर्च का बता दिया, सिग्निफिकेंट के बाद इन्होंने क्या करा है कि अपने ऑब्जेक्टिव हैं उनको इन्होंने क्लियर करा है। तो आपको भी इसको जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, जैसे सर्वे ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, एंड प्लांट पार्ट्स टू बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट डिसीजेस। उसके बाद आप इसमें और आगे देख सकते हो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन हैं उनका किस तरीके से हम जो है यूज करते हैं, ठीक, उनका डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग एंड पब्लिकेशन है आपका। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिंपल वे में आपको अपनी सिनॉप्सिस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल से सिंपल शब्दों में उसको लिखने की कोशिश करना है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसका भी माइक सर प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड प्लीज। जिसका भी माइक अभी म्यूट नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक को म्यूट कर लो। ठीक, रिव्यू एंड लिटरेचर है नेक्स्ट। रिव्यू एंड लिटरेचर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिव्यू एंड लिटरेचर में जैसे लिखेंगे आप, जबकि आपके पास बहुत सारे डाउनलोडेड पेपर्स होंगे, आपके पास रिव्यू आर्टिकल्स होंगे, रिव्यू
आर्टिकल में क्या क्या होता है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन। टाइप ऑफ पब्लिकेशन में रिसर्च पब्लिकेशन है, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल्स हैं। रिसर्च आर्टिकल क्या है, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव लोगे, उस ऑब्जेक्टिव से जो डाटा कलेक्ट होगा आपका, उसके बाद आप पब्लिश करोगे, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च आपकी हुई, इसके बाद में इसको पब्लिकेशन के बाद में जो ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो फाइंडिंग्स आई है आपकी, ठीक है, वो हो गई रिसर्च आर्टिकल, जो कि रिसर्च के जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश आपके होंगे। दूसरा है रिव्यू आर्टिकल। से लेके अब तक क्या क्या रिसर्च हुई है, कितना पब्लिकेशन हुआ है, उसका मुख्य पॉइंट जो कि आपके टॉपिक से संबंधित हैं, उस पे आप सिटी फाउंडेशन में दीपेंद्र यादव जी, आपका माइक म्यूट नहीं है। दीपेंद्र यादव, नेहा चौहान, नेहा चौहान अपना माइक म्यूट करिए, म्यूट नहीं है आपका माइक। सिटी फाउंडेशन का माइक म्यूट नहीं है। चंद्रकांत, आपका माइक म्यूट नहीं है, माइक म्यूट करिएगा। सिटी फाउंडेशन माइक म्यूट करें। चंद्रकांत जी अपना माइक म्यूट करिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, पढ़ता हूँ इसको। जैसे मैं मेडिसिनल प्लांट पे, चूंकि इनका वर्क था, ठीक, तो देखिए क्या इन्होंने लिखा है। फॉर एजेज प्लांट हैव बीन सेलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिसीजेज, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं देखना चाह रहा हूँ। सर वन रिक्वेस्ट, सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर बोलिए। ये सारी चीजें सिखाने से पहले इनको ये समझा दो कि म्यूट होना भी कुछ बुद्धिमानी का काम होता है सर। इतनी कहने के बाद ये सिटी फाउंडेशन है, चंद्रकांत जी है, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। क्या पहली क्लास के बच्चे हो गए आप लोग? इतनी उम्र हो गई, पीएचडी कर रहे हो आप 60 साल की उम्र में, आपको ये नहीं पता है कि जब आप ग्रुप में बैठे हो तो आपको म्यूट रखना है अपने आप को। टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है अलग अलग, और आपके अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं है कि सब खोल के बैठे हैं। ये कोई एलकेजी की बच्चों की क्लास चल रही है? राइट सर। ये पीएचडी करने आए और ये अभी ये लोग अपना ज्ञान बांट रहे थे, मेरा ये थीसिस है, वो थीसिस है। अरे सर डिस्टरबेंस होता है, आपको हम सुन ही नहीं पा रहे, और आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये लोग सुन नहीं रहे। ठीक है, सिटी के अंदर बुद्धि नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाते उठ के करिएगा, ठीक है। अभी भी लोगों के माइक म्यूट नहीं है। कल से क्या है, शुरू से ही आज इनके मैं नाम नोट करवा दूंगा कि कल से ये लोग वही मजबूरी में आपको क्लास से हम जो है इसमें अटेंड नहीं करने देंगे फिर, ठीक है। जो भी है अपना माइक एयर म्यूट नहीं कर रहे हैं तो भाई आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कि क्या क्या इसमें रिव्यू एंड लिटरेचर में देंगे, ठीक है। हिस्ट्री कब से इसका जो है इस पे काम चल रहा है आपके टॉपिक पे। जैसे द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज डिफिकल्ट टू ट्रेस अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डाटा। मेडिसिनल प्लांट्स वर यूटिलाइज्ड फ्रॉम द अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी डिटेल दे देनी है। धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है आगे,
कि क्या क्या काम हुआ है तो पहले, उसके बाद क्या काम रह गया है, ठीक है, वो आप उसमें रिसर्च गैप भी इसमें से बहुत ही सिंपल है सिनॉप्सिस को लिखना, बशर्ते कि आप उसको लिखने का काम स्टार्ट कर दें तब। ठीक, अब ये नेक्स्ट है आपका मेटीरियल एंड मेथड्स। तो मेटीरियल में मेथड्स जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। जैसे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट का यदि कोई स्टूडेंट है तो वो अलग तरीके से लिखेगा, क्योंकि उसका ये जो वर्क है तो लेबोरेटरी का वर्क होता है। तो लेबोरेटरी में जैसे सपोज करिएगा कोई बायो केमिस्ट्री का है, माइक्रोबायोलॉजी का है, जूलॉजी का है, बॉटनी का है। सर कैसे करें जी, मैथमेटिक्स? तो मेटीरियल एंड मेथड्स में लिखना होगा कौन कौन से केमिकल आपको यूज कर रहे हैं, तो केमिकल किस कंपनी से खरीदे गए हैं, जैसे सिग्मा से है, SRL से है, ठीक है, हाई में मीडिया से है, जी सर। तो उनकी डिटेल आपको सब नहीं देनी है। पहले क्या करना है कि रफ वर्क में आप सभी केमिकल्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन से मीडिया यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक। लेकिन आप जैसे डे बाई डे जैसे लिखोगे तो उसमें कौन सी कंपनी से जो है परचेज किए गए हैं उनको लिखोगे। फिर बाद में हमें सिनॉप्सिस में कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे मेटीरियल एंड मेथड में, ठीक। और उसके बाद में प्लेस ऑफ वर्क भी इम्पोर्टेंट है, किस लेबोरेटरी में आप काम करोगे। हाँ जी बोलिए। तो मैनेजमेंट में मेथड एंड मटेरियल कैसे लिखा जाएगा? ये मैं क्या करूंगा कि आपकी सिनॉप्सिस आपके सब्जेक्ट की किसी दिन मैनेजमेंट की सिनॉप्सिस ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, तो इसमें अभी जैसे कि ये हमारा साइंटिफिक सब्जेक्ट का है, जैसे जूलॉजी का मान लीजिएगा, बॉटनी का स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, जो दूसरा लेबोरेटरी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो जिनका कि आप यूज करने वाले हैं, ठीक। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमें यूज करने हैं, ये डिसाइड होगा ना। नंबर 1 आपने टॉपिक डिसाइड किया, उसके बाद में आपने क्या करा है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद डिसाइड होगा मेटीरियल एंड मेथड्स या मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में हमें देखना है कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स के द्वारा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मेथोडोलॉजी लिखने के लिए आपको प्रोटोकॉल देखने होंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वर्कर के द्वारा पब्लिश किए गए, ठीक है। तो उसमें आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगा जब भी सिनॉप्सिस डिस्कस होगी। अब मेटीरियल एंड मेथड आपने लिख दिया, इसके बाद में डाटा के कलेक्शन के बारे में लिखोगे, कैसे आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ये ट्यूबरकुलोसिस पे काम कर रहा है, ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस का डाटा कैसे कलेक्ट होगा, इसीलिए लेबोरेटरी में किसी इंस्टीट्यूट में जाके वो काम कर रहा है, तो कितने पेशेंट आते हैं, उस लेबोरेटरी में डॉक्टर्स के बाद जो है उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास वहां पे डाटा होगा कि 1 मंथ में हमारे पास इतने सैंपल आए, 6 मंथ में इतने आए। उसकी डायग्नोसिस हमने कैसे करी, कन्वेंशनल मेथड के द्वारा करते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक मेथड्स के द्वारा करते हैं। तो जब वहां पे लेबोरेटरी में जाके काम देखा, उसके बाद गाइड या को गाइड है उनसे संपर्क किया, फिर डिसाइड हो जाएगा कि हमें ऑब्जेक्टिव में क्या लेना है, मेटीरियल एंड मेथड कैसे लेना है। केवल हवा में नहीं लिख देंगे, पहले हमें देखना होगा कि रिसोर्सेस अवेलेबल क्या क्या हैं,
उन रिसोर्सेस के आधार पे मटेरियल एंड मेथड्स आपके डिसाइड होंगे, ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड होंगे। ठीक है, अब उस हाँ जी बोलिए। उमेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप, मैं समझता हूं बाद में डिस्कशन करूंगा आपसे। ठीक है जी। अब इसमें बात आती है कि जो आपने मटेरियल में मेथड जो लिखा है उसका प्रोटोकॉल का वैलिडेशन। ठीक, लिटरेचर में आपने सर्च किया ऑलरेडी, से सपोज करिएगा ये अर्पण कुमार जी ने कुछ काम और किया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे सब्जेक्ट से, हमारे ऑब्जेक्टिव से में मिलता हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अर्पण कुमार जी ने जो पब्लिकेशन करे हुए हैं उनके पब्लिकेशन को अच्छे से हम पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल को हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर ये देखेंगे कि इनके द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसका वैलिडेशन हम अपनी लेबोरेटरी में एक बार हमें करना होगा। वैलिडेशन के लिए क्या है, जो सैंपल हैं, ठीक है, उन सैंपल को लेके उन्हीं के इनके में मेथड को फॉलो करते हुए, उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारे जो आ रहे हैं वो रिपीट होते हैं या नहीं। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखें साइंटिफिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, जो भी मेथड्स आप अप्लाई करने वाले हैं अपनी सिनॉप्सिस में जो प्रोटोकॉल लिख रहे हैं उसका वैलिडेशन बहुत ही आवश्यक है। लेबोरेटरी में जाके उस मेथड को आप वैलिडेट करिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वैलिडेट करेंगे। जब तीनों बार की रिजल्ट एक से आ जाए उन्हीं सैंपल से, सैंपल आपको चेंज नहीं करना है। शुरू में यदि आपने 10 सैंपल लिए हैं, 20 सैंपल लिए हैं, उनको रखिए, प्रिजर्व करके रखिए। एक बार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट नोट करिए, दूसरी बार में नोट करिए, तीसरी बार में नोट करिए। अगर रिपीटिशन ऑफ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है लेकिन मेजर डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, तब ये आपका वैलिडेशन ऑफ योर रिसर्च प्रोटोकॉल, ठीक है, हो गया। जब ये वैलिडेशन हो गया उसके बाद में आप वो प्रोटोकॉल अपनी सिनॉप्सिस में दे सकते हो। जरूरी नहीं कि अर्पण कुमार जी ने जो प्रोटोकॉल लिखा है एज सच आप उसको लिखो, क्योंकि लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी कंडीशन डिफरेंट होती है। अर्पण कुमार जी यदि नेपाल में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ कौन से केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक, तो उसमें स्टैंडर्ड एरर इंडिया में आप काम कर रहे हो तो उसमें आने की संभावना रहती है। सो you have to validate each and every protocol of any experiment, and after getting the satisfactory result you have to write final protocol in your synopsis, ठीक, because you have to generate more and more data by using this protocol, ठीक। पूरी साइंटिफिक रिसर्च आपकी उसी प्रोटोकॉल पर निर्भर है, उन्हीं इक्विपमेंट्स पर निर्भर है कि जिनको कि आप यूज करने वाले, ठीक। आपसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे कल कुछ ठीक है, विजया मैम आप जो है माइक को म्यूट करिएगा, ठीक है। सतीश कुमार द्विवेदी जी आप माइक को म्यूट करिए। कल हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि हम गाइड लें, उसके साथ में को गाइड लें या नहीं। तो जो स्टूडेंट साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, लेबोरेटरी में आपको काम करना है तो किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी लेबोरेटरी में जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी कॉलेज में जाओगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे और ये जो साइंटिफिक आपके प्रोटोकॉल हैं उनको वैलिडेट करोगे। तो यदि वहां के साइंटिस्ट का, वहां के प्रोफेसर का सहयोग ले रहे हो, उनको यदि आप को गाइड के रूप में रखोगे तो आपको
जो काम थोड़ा सा मुश्किल से होगा वो आपका आसानी से हो सकता है। ठीक है, लोकल गाइडेंस भी आपको मिलेगा, तो इसलिए आप उनको को गाइड के रूप में ले सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि जब आपने ये प्रोटोकॉल को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आपके नहीं आ रहे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसमें आप आपकी लेबोरेटरी में मॉडिफिकेशन करोगे प्रोटोकॉल को। ठीक, सपोज करिएगा कोई प्रोटोकॉल है, कोई टेस्ट है जो कि एक कंपनी की उस पे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ठीक से नहीं आ रहा है, तो दूसरी लेबोरेटरी में आप दूसरी कंपनी के स्टूडेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट में जाके काम करिए, हो सकता है वहां से आ जाए। प्रोटोकॉल में चेंज करके देखिएगा। ठीक, आप अभी एक जो है साइंटिस्ट का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, दूसरे साइंटिस्ट के प्रोटोकॉल जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसको देखिए। तो शुरू में जो हमारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि साहब हमारी सिनॉप्सिस हमने जमा कर दी है, उसके बाद भी अप्रूव नहीं हो रही है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। Excuse me, sir. Sir, synopsis and research proposal, both are the same? Both are the same. Okay. ठीक है, for PhD student both are the same. But after PhD, the research proposal for a project, okay, for funding agency, there is only minor difference. Okay. ठीक, So ये वो भी हम आपको solicited बता दें। unsolicited, solicited and unsolicited proposal. हाँ जी, Grant claim generally we write it. देखिए sir, one अभी more हमारा जो question. डिस्कशन है अभी, चूंकि Academic proposal पर है. Academic. majority of students, near about 90% students want to learn the process of synopsis writing. Okay, Yes. so here I want No, to I'm just discuss. was just asking that means they are the same means synonyms of each other or what? That's what I'm asking about. मैडम ऐसा है, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, ये जो सिनॉप्सिस का जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपका और आपके गाइड के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी इसको अप्रूव करने वाली है। तो ये यहाँ पे हम फंडिंग एजेंसी की बात नहीं करते हैं कि कितने और जो है स्टूडेंट इसमें JRF, SRF, ठीक है, या और जो सेंटर्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनका नाम हम नहीं देते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर का नाम नहीं देते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेटर का नाम नहीं देते हैं। तो ये रिसर्च की जो थीम है वो एक ही है। ठीक, जब किसी फंडिंग एजेंसी के लिए हम भेजते हैं तो हमारा रिसर्च प्रपोजल जो है उसके ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ब्रॉड हो जाता है, और उसमें एक स्टूडेंट भी PhD कर सकता है और 10 स्टूडेंट भी उसमें PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट है। तो यहाँ डिटेल में मैं अभी केवल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल। यदि किसी को फंडिंग एजेंसी के लिए यदि डिस्कस करना है तो आप अलग से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल फॉर नहीं सर, मैं बस रिसर्च प्रपोजल के ही बारे में एक्चुअली मैं बस इतना श्योर होना चाह रही थी कि सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल दोनों सेम ही चीज हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। That was my question. I'm not asking about funded or non-funded. For a PhD student, synopsis and research proposal is same. Yeah, that's what I'm. Yeah, this is my question. Okay. I'm not asking about funded or non-funded. Okay. ठीक है, रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट केवल उनके लिए है जो कि कहीं से फंडिंग एजेंसी यदि स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो, यहाँ तक कि जिनके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं, अपनी सिनॉप्सिस को ही मॉडिफाई करके आप जो है सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। माइनर मॉडिफिकेशन है, केवल उसमें क्या देना होता है, उसमें जहां पे आप काम करोगे, आपको स्पष्ट कर दूं,
वहां के डायरेक्टर से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी है, वो वहां पे आपको लेटर देंगे कि इतना फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। वो आपको अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। यस, नेक्स्ट जो है इसमें बात हम कर रहे थे प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन की। याद रखिएगा, यदि प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है आपका, तो आपका के द्वारा ऑथेंटिक रिसर्च नहीं हो सकती। ठीक, ऑथेंटिक रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट बहुत आवश्यक है। यहां तक यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। Sir, just I आज का want जो to ask. डिस्कशन, हाँ जी बोलिए। Sir, what is the procedure to select the guide? After submitting the synopsis, we need to select the guide. Just I want to know, sir. No. The guide will be provided. The guide will be provided after completion of your research coursework. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. So, after examination, our dean as well as some senior faculty member, our respected the director of the research will provide you guide related to your subject. Yes. Okay? There is no need to worry. सर एक प्रश्न है, मैं सतीश कुमार द्विवेदी। सर, कोर्स वर्क पूरा होने के कितने दिन बाद हम सिनॉप्सिस जमा कर सकते हैं? कुछ इसका समय होता है? कोर्स वर्क का समय 6 मंथ का है। 6 मंथ के बाद आपका जो है, जैसे ही 6 मंथ आपके होते हैं कोर्स वर्क के, वैसे ही आप जो है सिनॉप्सिस अपनी जमा कर सकते हैं। उसका कोई समय है सर, कितने दिन में जमा करना है? After 6 months, you have to submit your synopsis. Anytime. Anytime. Okay, sir. हेलो, ठीक है, हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जैसे हम सिनॉप्सिस के लिए कोई भी मतलब टॉपिक सिलेक्ट करते, सर हमें खुद ही करना पड़ेगा या सर गाइड की हेल्प लेके सर टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा? मैडम, ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ। हाँ ठीक जी, है, जी सर। लिखने का रिहर्सल करवा रहा हूँ। जी सर। आपने देखा होगा जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो कितने बार जो है कोर्स को रिवाइज करते हैं। जी सर। ठीक है, जितने बार आप लिखना स्टार्ट करोगे तो मैं सोचता हूँ कि आप स्वयं इस स्थिति में होगे कि गाइड मींस गाइड है। जी सर। गाइड आपको सिनॉप्सिस लिख के नहीं दे देंगे, गाइड के केवल आपको गाइड करेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन है, क्या टॉपिक होगा और क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कि कैसे सिनॉप्सिस लिखनी है। सर जैसे सर मतलब कहने का मतलब ये है कि सर जैसे हम तो कोई भी 4 टॉपिक ले लेते हैं, मतलब सर मैं ज्योग्राफी से हूँ। 4 तो हमने आपको इसलिए बताया था कि 4 में से जो सबसे ज्यादा आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप सेलेक्ट कर लोगे 2-3 लेक्चर के बाद, इसलिए 4 आपको बताया है। जी सर, जैसे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इन हरियाणा या फिर ठीक है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, लेकिन ये ब्रॉड है। ठीक है, इसको और स्पेसिफाई करना होगा। प्रीवियस वर्कर ने क्या ये जो है अभी इस पे काम किया है वो देखना होगा। किस यूनिवर्सिटी से पीजी किया है आपने? सर एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा। अच्छी ये यूनिवर्सिटी है, आप देखिएगा लाइब्रेरी में जाके कि क्या क्या काम हुआ है, ऑनलाइन सर्च करिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए रिसर्च गैप क्या है। जी सर। ठीक, तो इसीलिए आपसे कहा है कि गाइड के साथ में यदि आप कोई लोकल को गाइड जो कि आपके प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी यदि आप उनकी राय लेना चाह रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको हम को गाइड बना सकते हैं और
वो आपको पूर्ण रूप से गाइड कर सकते हैं। सर जैसे हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इन हरियाणा, तो सर हमें सबसे पहले कि क्या गाइड सर से मिलना पड़ेगा, उससे सर पूछना पड़ेगा कि सर क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं, या फिर खुद ही करना पड़ेगा? अभी आप अपना टॉपिक के अनुसार ऑब्जेक्टिव लिखिए, लिटरेचर सर्च करिए, जब आपको अभ्यास लिखने का हो जाएगा फिर आप गाइड के पास उसको रिफाइन करा सकते हो। ओके या सर कोई भी को गाइड जो है, जो प्रोफेसर हैं, उनसे आप अभी भी संपर्क कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कल मैं एमडी यूनिवर्सिटी गई थी सर, वो उन्होंने ये बोला कि पहले अप्रूवल लेटर लेके आओ जो आप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो सर। हाँ जी, तो आपका एडमिशन कब का है मैम? सर अभी 2021 का है। 21 का है, तो 21 कब का है? 21 में सितंबर अक्टूबर का है। सितंबर अक्टूबर में है, तो आप जो है सिनॉप्सिस लिखने की स्थिति में आपको होना चाहिए। जी सर, यस सर, लिखिए। वो एंट्री नहीं करने देते हमें जी सर, वो एंट्री नहीं करने देते, वो ये कह रहे कि पहले अप्रूव लेटर लेके आओ वहां से। तो उसके लिए आप पहले सिनॉप्सिस लिखने का अभ्यास करिएगा, उसके बाद एग्जाम दीजिए। एग्जाम हो गया आपका कि नहीं अभी? यस सर, एग्जाम हो चुका है। एग्जाम हो गया तो आपको लेटर में मिल जाएगा। ठीक है, सर से आप कांटेक्ट करिए। अप्रूवल लेटर का मतलब है सिनॉप्सिस अप्रूवल लेटर। यस सर। ठीक है, सिनॉप्सिस जमा हुई आपकी? सर इस सिनॉप्सिस से तो बना रहे हो सर, मुझे ये तो फिर एमडीयू एक बार गाइड जाके लाइब्रेरी वगैरह में ये देखती सर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप अलग से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आज के डिस्कशन में इतना ही। सर ऑल म्यूट करें, आवाज कैसी क्या रही है? डॉक्टर रेनू जी सर, आपका माइक म्यूट नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज का डिस्कशन इतना ही है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, वन मोर क्वेश्चन सर, आपने भी बोला कि सर वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टू बॉदर यू। उमेद सिंह, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उमेद सिंह सर आवाज ठीक नहीं आ रही। Sir, please remove the Umed Singh. Now there's a lots of disturbance in class, sir. सर ऑल म्यूट कर दे सर, आवाज आ रही है। आप लोगों का एक्सपीरियंस आज का अच्छा नहीं रहा। ठीक है, आगे से याद रखिए कि आपके म्यूट होने चाहिए। ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब, डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दो सब दें, हमें गाइडेंस की आवश्यकता है।
हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। अपना आशीर्वाद दें। प्रणाम सर। मॉर्निंग सर, नमस्कार। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Namaste. डॉक्टर प्रभात टेलिंग यू वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स। बहुत अच्छी लग रही है आपकी क्लास, अच्छी चल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर प्रभात आपको बता रहे हैं और बड़ी सिंसियरली, बड़ी लगन से आप उन्हें बात कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि these 15 days are very crucial for you, are very important for scholars, क्योंकि इन दिनों में आपकी जो प्रारंभिक समस्याएं हैं, हाउ टू स्टार्ट विद योर वर्क, हाउ टू चूज योर टॉपिक, हाउ टू चूज योर राइटिंग मटेरियल, ये सारी बातें आज हमारे टीचर्स आपको बताएंगे। सर डॉक्टर प्रभात है, डॉक्टर सुरेश सिंह है और 2-3 टीचर्स हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी से अलग टीचर्स भी हम कर रहे हैं। They will do their lectures, tell you about way of writing, way of copying your material and all that. तो आपकी रिसर्च जो है वो एक स्टैंडर्ड चाहिए, ऐसा लगे कि आपने इस पर किया है। आपको चला हुआ है दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, नेट के लिए आप वो कर लेते हैं, बट हैव सम ओरिजिनलिटी इन योर वर्क। जब तक आपके काम में ओरिजिनलिटी नहीं होगी, इट इज नो यूज कॉपिंग अदर्स, कॉपिंग मटेरियल फ्रॉम गूगल और नेट और एनी अदर एजेंसी। सो वर्क हार्ड, डू योर ओन वर्क, और रिसर्च से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार आदमी सोचता है कैसे होगा कैसे होगा। Once you start working, things start going on. जैसे आप काम शुरू कर देंगे, अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। चिंता होती है, जब तक सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे। शुरू कर दिया Mustafa, please mute your mic. Okay, sir. Mustafa, mute your mic. Yes. some noise is there. Yes, Anyway, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबकी क्लासेस में जो उपस्थित हैं अपना अपना काम ढंग से कर पाए, अच्छे ढंग से कर पाए और सक्सेसफुली कर पाए, ये आपके लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन विद योर लेक्चर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Hello. थैंक यू सर। सर एक प्रश्न था। हाँ जी, वो बोलिए। सर ये कह रहे थे क्या हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के बाहर के भी गाइड ले सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो हैं वही गाइड होंगे हमारे? हम क्या करते हैं साहब कि यूनिवर्सिटी के बाहर के जो प्रोफेसर हैं उनको आप को गाइड के रूप में ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार ये यूनिवर्सिटी का गाइड होना चाहिए। और इस पे डिस्कशन आप अलग से भी हमारे डायरेक्टर साहब से बाद में कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे हम जो बात करते हैं तो वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के हित की बात करते हैं। ओके सर। अब कोई स्टूडेंट हमारे बहुत ही सीनियर हैं जो कि बहुत से लोगों में को जो है पीएचडी में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको ये स्थिति तो थोड़ी अलग होती है, ठीक है सर? जी सर, जी सर। तो लेकिन कॉमनली जो स्टूडेंट हैं वो हमारे वो ये यूनिवर्सिटी से ही गाइड लेते हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। Sir,
सर सिनॉप्सिस एग्जाम के बाद बनाना होता है या अभी से स्टार्ट करना है? सिनॉप्सिस लिखने का प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी, जिससे कि हाँ। अभी यदि आप अभी इसको स्टार्ट कर दोगे तो आप स्वयं इस स्थिति में होंगे कि हमें इसमें क्या चेंज करना है। गाइड के साथ जब आप बैठोगे तो आपको केवल चेंज करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा। सब कुछ आप जानते होगे अभी, यदि आप स्वयं लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो केवल लेक्चर अटेंड ही नहीं करना है, आपको लिखना भी स्टार्ट कर देना है। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। सर यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं ना, मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में अगर बुक्स वगैरह देखनी हो तो, क्योंकि मैं यहीं से पास से ही हूँ चिड़ावा। बिल्कुल भी आप कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर आप ऑनलाइन सर्च करिए, क्योंकि कोविड की वजह से अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक, लेकिन कोविड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप लोग फ्री हैं कि कभी भी यूनिवर्सिटी आए, कभी भी हम लोगों से आप कांटेक्ट करें, जितनी भी हेल्प हो सकती है आपकी की जाएगी। सर यूनिवर्सिटी कोई मतलब जैसे साइंटिफिक जर्नल्स हैं या और भी जर्नल्स हैं, उनके लिए कोई एक्सेस देगा स्कॉलर्स को? एक्सेस के लिए आपको देखिएगा ना, नंबर 1 तो क्या है कि आप पहले अपना ये जो है जनरेट करिएगा, जितना भी जो नहीं, लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करने के लिए सर अगर अच्छे जर्नल्स होंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छे जर्नल्स के लिए क्या होता है, वो पेड जर्नल्स होते हैं, तो पेड जर्नल के लिए यूनिवर्सिटी कोई एक्सेस प्रोवाइड करेंगे? मैडम इसके लिए क्या है कि जो आपके गाइड होंगे, जो होंगे, वो यदि उनको मेल कर देते हैं तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी हमें भेज भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, उसके लिए आपको ये है कि जैसा भी आपके गाइड बताएं, जैसा भी को गाइड बताएं, तो अभी तो जो हमने आपको काम दिया है उस पर काम करना स्टार्ट करिए। ये नहीं है, सभी को डिस्कशन करता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. One query, sir. इतना ही है, कल हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? नेक्स्ट क्लास के लिए अभी हम डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करते हैं, आपको मैं मैसेज कर दिया जाएगा अभी। सर ऑन व्हाट्सएप? Sir, one query, sir. Thank you, sir. Thank you. Can you send? Thank you, sir. But maximum receive. Can you send some? Because there is no WhatsApp group, sir. सर हेलो हेलो, Yes. चले गए सर। नेक्स्ट क्लास कब होगी? Excuse me to all. There is any चलेगा, भी WhatsApp मैसेज group? देंगे ना सर। There is any WhatsApp group or not? अगला क्लास कब चलेगा किसी को मालूम है भाई? अभी सर ने कहा है कि मैसेज डालेंगे ना। मैसेज मैसेज कर दूंगा बोल रहा हूँ। हेलो, मेल आएगा, मैसेज किसमें आएगा? मेल आएगा या फिर व्हाट्सएप पे आएगा? किसी स्कॉलर के पास सिनॉप्सिस का प्रारूप है जो भेज सकता है? मेरे विचार से अब होगा जैसा लग रहा है। मैसेज कहाँ से आएगा? वो ग्रुप कल ही होगा। ग्रुप क्रिएट भी नहीं हुआ है अभी तो। ग्रुप है There is a no group. हेलो, अभी तो ग्रुप बना ही नहीं है, तो मैसेज। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए क्या दिक्कत है? अरे प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं बना है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। प्रणाम सर। Sir, we are talking about the WhatsApp group, sir. Good morning, sir. गुड आफ्टरनून सर। मैडम गुड आफ्टरनून सर। मैं एडमिन हूँ। आफ्टरनून सर। Good morning, sir. Just want to know when the next class will get started, sir. At what Yeah, time? okay, after 15 minutes I will join again, okay? Yes sir, yes sir. Good morning. Hello. Yes, sir.
Yeah, don't worry. I will join after 15 minutes. Okay, we will meet after 15 minutes. Please come. Please join your class with the laptop. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. You should keep laptop. Otherwise, a extra device. Okay, sir. Okay. After 15 minutes. Right now is 11:54 as per my mobile time. Okay. Yes, We sir. will meet on exactly 11:15. Sorry, 12:15. 12:15. 12:15. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, Yes, sir. sir. And don't worry. We are creating your WhatsApp group. Don't worry about it. Okay. I assure you. Yes, sir. Okay. Because we are busy in some official works today. So, but we will create it. Okay. Don't worry. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So we'll meet on. We'll meet on 12:15. Okay. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Problem from the various sources like deduction from the theories. If you are a researcher, then in past years you studied so many theories. Okay, so from there you can take idea about it. Okay, if any theory you studied and you think about it, okay, there is some deficiency, I want to remove the deficiency of the existing theories, then you can go for the research. Okay, if you have some different opinion from the existing theory, then you can go for the research. Okay, if you think the theory can be amended, can be modified, then you can go for the research. Okay, so these are the few things which are helpful to take the research problem from the existing theories. Okay, and suppose you and me sitting together, we are discussing something. Okay, otherwise you are taking my interview, then few things you can be identify from there. If any practitioner who is expert in the field, then you can take the problem from there, because he's telling about their practices. Okay, so you can take idea from there. That will be the source of the research problems identification. And your personal experience, every day we are feeling the experience, so many experience. Okay, suppose you are living in an area and there is a biggest deficiency of the water, then how can you solve it? Okay, what are the alternate sources about it? Okay, so your personal experience also be used for the research problems identification. Okay, and the past relevant literature, as I told you, this is a very, very important thing for the research gap identification, because identification of the research problem is not sufficient. As a research scholar, you should think about the research gap also. If you are not able to identify the research gap, then you will not go ahead for the good research. Okay, so these are the sources for the identification of the research problems. Okay, importance of the research problems. Okay, what are the importance of the research problems? Okay, so the quality of good research, listen to me, okay, my dear scholars. Okay, the quality of the good research work is gauged by, is measured by, okay, is examined by the research problem. Okay, if you are able to define a good research problem, then your quality of the research will be good. Okay, result interpretation, we did a lot of work. Okay, we did very good work. Okay, but we are not able to interpret the results, because I told you earlier, okay, interpretation of the result giving you the 15%. So sometimes a research scholar did very good work, he got the best results, but not interpreting the results in a good manner. Okay, so that is the biggest problem. Okay, and the presentation of the results, you are able to interpret the results, you are able to define a good research problems, but you are not able to present. Okay, I don't have a sufficient knowledge in the field of the research, but I am giving the presentation in a very good way. If my scholar is getting it okay easily, then it means I am doing my best. Okay, suppose I have knowledge, I can interpret, but my presentation is not good for you, then what is the value of my knowledge? So thing is that you have to present your results in a very good manner. That is also a parameter of your research measurements. Okay, so result interpretation is also very, very good thing. Okay, and primarily a good research work should start with a good research problem. As I told you, if you define your research problem
in very good manner, it means you complete your research around 50%. So a good research work should start with the good research problems. Okay, problem clearly state the problem have solved. Okay, यदि आपका जो है प्रॉब्लम ने आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया है, इसका मीनिंग ये हो गया कि आप जो है 50% सॉल्यूशन कर चुके हैं. So these are the things which you have to consider. Okay, now I'm not going for the literature review and literature survey. I want to tell you. Okay, sir, you told us the research things. Okay, what are the research? What are the parameters of the research? Okay, so but how many types research are there? Okay, types क्या है research के? कौन-कौन सी research हो सकती हैं? So if you are talking about the research types, then firstly we have to consider that there are two types. One is the pure research and another is the applied research. Okay. So if you are talking about the research types, okay, then there are so many ways. There are so many parameters to classify the research. Okay. So basically, if you are talking about the basic things, nature of the research, then there are two type research. Okay, one is the pure research, you can say basic research, and another one is the applied research. What is the difference between two? How can you identify? हमारा research pure है कि basic है, और हमारा research. तो अभी हम बात करते हैं रिसर्च के टाइप्स के बारे में कि रिसर्च जो है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो मैं उसी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. Yeah, please, Mr. Person who is sitting on the chair, who wear the red coat. Okay, please you change your manner to sit. Okay. Are you? Hello. इसका मतलब ये नहीं है मैं क्लास ले रहा हूं तो आपका वीडियो नहीं देख रहा हूं. मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करता रहता हूं. ये जो आप बैठने का तरीका है ना आप लोगों का, आई डिडंट फील कंफर्ट. मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? ये जो तरीका है ना, आप लोगों का, ये जो few scholars are sitting in a very comfort job, you are not playing the football, you are not playing the cricket. Okay. Yes. और ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मैं उनका पोजीशन देखता हूँ, बड़ा मेरे को सरप्राइज होता है. जरूरी नहीं है कि आप कोर्स वर्क की क्लासेज लें, किसी ने कहा नहीं है आपको कि यू कैन एग्जिट फ्रॉम द क्लास. ओके, बट एटलीस्ट इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, देन आपको पता होना चाहिए कि क्लास में कैसे बैठना है. जी सर. ओके सर. Okay, so we are talking about the research types. Okay, research का कैसे types, तो मैंने आपको बताया there are two type of research. One is the basic research, another one is the applied research. Okay, वही मैं बता रहा हूँ, उसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले. So if you are talking about the research types, then the two type research. Okay, one is pure research, you can say basic research, versus applied research. Okay, so basic research means pure research. Okay, add to the existing body of knowledge, add some knowledge to the existing one. Okay, that is the pure and basic research. Okay, and another one is the applied research. Is the research that is designed to solve specific practical problems and answer the certain questions and find out the problem of the any solution. Okay, so these are the two types. Okay, now I am going to explore it. Okay, suppose there is an example. Okay, there is an example. Okay, the earth shape is oval. You know about it. Okay, सबने सुना है कि अर्थ का शेप कैसा होता है? You know about it? The procedure of the human reproduction. Okay, the procedure of the animal reproduction. Okay, we all know about it. Okay, सबको पता है ना कि नहीं पता? अर्थ का शेप कैसा बोलते हैं हम लोग? निधि चौधरी,
Yeah, oval बोलते हैं. Okay. Okay, we know the we know the we know the production of the plants. Okay, सबको पता है कि how plants are reproduce. Okay, reproductions. Okay, we know about it. Okay, means the knowledge has been established already. Okay, by बोल रहे हैं, उनकी आवाज मीठी है, उनकी सुन लेते हैं थोड़ी. So मैं म्यूट कर दीजिए ना सर, आप सबको म्यूट कर दीजिए. Actually वो मुझे पता है, I can mute. Okay, but how can you know your natures? Okay, मुझे मार्क्स भी तो देना है ना भैया. हमारा जो यदि सिलेबस है उसमें एक्सटर्नल असेसमेंट भी है और इंटरनल असेसमेंट भी है, तो इंटरनल मुझे सामने से तो करना है. कौन सा मेरे सामने आके बैठोगे आप लोग? You will not sit in the front of me. Okay, I will observe from the online classes. Okay, right sir. Okay, तो वो मेरे हाथ में अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे हाथ में जब मार्क्स आएंगे तो मार्क्स तो मुझे ही देने ना. I have to allow it. Okay, I will see who is closed video and who is showing his or her image. Okay, so वो भी तो देखना है मुझे, इसलिए मैं बार बार स्क्रॉल करके, मेरा मोबाइल छोटा है लेकिन मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ. इन्हीं के नंबर मिलेंगे, कौन कितना डिसिप्लिन दिखाता है. हाँ, इसी की मिलेंगे. बाकी इंटरनल असेसमेंट कैसे करोगे आप? Sir, video should be on, sir. Sir, regarding video, sir, because we have small kids, so sometimes they are coming here and there. That's why we are. मैडम, मेरे भी बच्चे हैं. यदि बच्चे हैं, बच्चे तो आएंगे ना, आने दो. But you are so, sir, disturbance. It's not a big issue. Okay, it's not big issue. Okay, problem. This is the only thing that we are just switching off our video. Otherwise, I got your point, but you can show your kids. Okay, don't worry. But the problem कहाँ है? If you are working in the kitchen and your kids sitting in the front of the video and video is off. Okay, that is the biggest problem. No, sir, I am just using my laptop and I am just that is listening good. to your Okay, lecture. That's the only thing which I am doing right now. Okay, don't give the excuse about the video of ma'am, please. This is the only thing I'm just telling you. I switch on the video. have kept. Yeah, please keep your video on, please. मैंने शुरुआत से आपको बोला, otherwise मैं मार्क्स नहीं देने वाला आप लोगों को, sure है. Okay, sir. Actually, I was not knowing that. Okay, so I'm going again for the presentation. Okay. So pure research is based on the belief, knowledge for the knowledge sake. Okay, means you are giving something new in the ad a opinion, add a strong opinion, add a solid result in the existing knowledge. Okay, so pure research is based on the is based on the belief, knowledge for the knowledge sake. I told you it doesn't have any any short-term applications. Okay, so it's aimed to develop and enhance the theory. I told you earlier. Okay, to enhance, you are going to I don't know what's going on. If any country, if any society facing food problems, okay, then what you will do? You will try to go give some solutions. Okay, how can food quality can be improved? So person will not suffer from the various disease. Okay, so that will be the applied research. Okay, if you want to treat and cure a specific disease, then you will go for the applied research. To increase the number of the customer in a company, you have come. Okay, if you are facing some problems in your organization, then you will go for the applied research. So these are the few things which are the related to the research types. Okay, these are the two very important research. If you are talking about the nature of the research, okay, what is the nature of the research? Okay, so as per the nature of the research, there are the two types. One is the applied research, another one is the
pure and basic research. Okay. Now we are going to another types. Okay. Descriptive research versus analytical research. Okay. So actually, descriptive research, as you know, descriptive research means it gives the description. Okay. कोई भी, what is the anything is presently exist in the what form. Okay. If you are going for the description, suppose you are going to give the description about our class. Okay. Then what will you say? Okay. What is the present situations? Okay. How they are exist, how the present how the things are happening presently. Okay. So if you are going to description, okay, description versus analytical. Okay. If you are going to describe the things which are exist in the present scenario. Okay, that is the description research. Okay. Description research is not giving the answer of the why. Okay. They are giving answer only the what and how, क्या है और कैसे वो exist कर रही हैं. They are not giving the answer of the why. Okay. क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा नहीं पता चलता. ओके. तो डिस्क्रिप्शन रिसर्च क्या करता है, सिर्फ जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको डिस्क्राइब करता है. ओके. सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल. ओके. Study of the disease which are frequently occurred in our state. Okay. Study of the disease which are frequently occurred in our state. Just I'm giving you example. Okay. Means what are the diseases which are frequently occurred in our state. Okay. So it means you are going to describe it only. Okay. You are going to describe it. Okay. How many diseases frequently occur in our state in a year, in a 2 year. Okay. You are not telling about the why the disease are occurred. You are not telling about it. Okay. So descriptive means you are giving the description about the things. Okay. But if you are talking about the why, you are going to analyze it. Okay. Why the disease occurred, then you will go for the analytical research. That is the two type research, descriptive research and analytical research. It is clear to all. I am giving you example again. Okay. Yes. Okay. For example, okay. Finding the most frequent disease that affects the children of a town. Okay. Means you are going to conduct a research to find the research about the most frequent disease that affects the children of a town. Okay. What will you do? You will describe only the disease which are affected the children in a particular town. Okay. But you are not going to why the things are happening there. Okay. So actually, then what will you do? You will go for the analytical research. Okay. In analytical research, the researcher has to analyze the facts. Okay. Information already available. Okay. So what you will do? What you will do? You are going to analyzing the facts. You want to explain why the things happening. Okay. How can you stop them? Okay. So the things are the very important to give the answer of the why and how. Okay. The analytical research attempts to explain the answer of why. Okay. It usually concern about the cause and effect relationship between the variables. I will tell you later about the variables. Okay. So thing is that if you want to give the answer of the why thing is happening in a particular manner, why the things are occurring again and again. Okay. So if you want to give the answer about the why, okay, then you will go for the analytical research. And if you are giving the answer of the what, then you will go for the descriptive research. Okay. What is this? Okay.
If you are going the answer of the why, then you will go for the analytical research. There are the two type research. Okay, very very important. Okay, there is because analytical research will tell about the cause and effects. Cause and effects. Okay, what are the cause and what will be the effect? But descriptive research doesn't explain it. Okay, descriptive research explain about the exist things. Okay, how they are existing here, how they are existing in the present scenario. Okay, means if you are going to describe anything, you are giving the descriptive study. Suppose you are going to conduct a research, the behavior study. Okay, the behavior, if you are going to the study of the employee behavior. Okay, if you are going to study about the student behavior among the online classes. Okay, so what will you do? You will analyze the different behavior and you will describe it. But if you are going to conduct why student doing like this, why student behave like this. Okay, then what will you do? You will go for the analytical research. That is the research. Okay, so descriptive research and analytical research, they are the two types others. Okay, आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ आप लोगों को. Remaining we will start tomorrow because मैं भी आज थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन आना जरूरी था because I promised you कि I will take your class definitely. Okay, so again we will join tomorrow. If you have any doubt, you can ask me. Okay, otherwise I'm going to end the meeting. Okay, Sir, research वक्त जैसे do we require to do applied research or pure research? Means what would be preferable? Actually, mostly students doing the applied research in the short time periods. Okay, because we are not able to conduct the pure, because pure and basic, we are based on the pure and basic research. Okay, there are so many pure and basic research we have. Okay, so we are building our research on that fundamental things. Okay, means we are going to conduct the applied research. Okay, because it's very very useful for us. Okay, we want to solve the problems. Okay, but if you will go for the pure and basic research, it means you will take a long time. Okay, so my dear students, don't think about the pure and basic research. Okay, I am not saying you can do or not. Okay, you can do or not, but in the short time period and as per our situations, we are not able to conduct the pure and basic research. Okay, because we are not able to build some new things. Okay, but I'm not saying you can't do it. Okay, you can do it. Okay, if you have something in mind, okay, then you can go ahead. Okay, but it's my opinion, mostly this is researchers doing the applied research. And is there any hybrid research, sir? Hybrid research, pure and applied? Actually all know the things about the hybrid. Okay, but we are not doing like that. Okay, hybrid means what are you giving new? Okay, are you able to add something new in the existing theories? Are you able to change the opinion of the existing theories? We are doing like that. Okay, few schools doing like that. Okay, but they are only doing the applied research, but they are giving the big name hybrid research. Okay, but it's not easy to conduct that, because firstly you have to conduct the pure research, then you will go for the hybridization. Okay, it's not easy. तो करना आसान होता है कि मैं हाइब्रिड कर दूंगा, कोई गाजर और मूली को नहीं बनाना है इसमें आपस में. ठीक है, रिसर्च करना होता है. तो I'm not saying you can do or not, but mostly यही करते हैं हम लोग. या प्लीज टेल मी. सर मैं सतीश कुमार द्विवेदी, एक प्रश्न है सर. हाँ बोलिए. हाँ सर, वो जो है सिनॉप्सिस का कोई प्रारूप मिल सकता है क्या? My dear, please don't ask me synopsis. Okay, just talk about the present lecture. When I will go on the synopsis, I will tell you. Okay, as I told you, please don't discuss more things. Okay, discuss about only the present classes. Okay, I will tell you. जब मैं द्विवेदी जी जब मैं synopsis के बारे में बात करूंगा, I will tell you. Okay, I promised you. ओके सर. ओके, आपके एक सवाल से बाकी मेरे साथी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे. मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. ठीक सर, ठीक सर. जब जिस दिन मैं सिनॉप्सिस वर्ड बोलूंगा ना, उस दिन आपको एक एक बात बताऊंगा. ठीक सर, ठीक. ओके सर, ओके सर. आई प्रोमिस्ड यू. Excuse me, sir. Pure research, applied research, descriptive research, analytical research. Only these types of research, sir. Actually, I told you that firstly I will tell all the types. Okay, then I will classify it. Okay, I told you there are so many ways to classify the research. Okay, I am not telling the ways. Why? There is a reason. Okay, firstly we will read the all research, then we will categorize them. Okay, don't worry.
Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, so we can finish. We can finish Okay, today. sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for the lecture. Thank you, sir. Thank you. Please, Pranam, sir. please mark the attendance. Yes, sure. हो गया. Okay, sir. ये सबसे बड़ा है, मेरा क्लास लो नहीं लो, लेकिन ये करना जरूरी है। नहीं सर, आपकी मैं ऐसे लोगों को आपका क्लास सर बहुत बढ़िया। मैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इनिशियली कि शुरुआत के 5 मिनट में हुई ज्वाइनिंग एंड आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट। ओके, आफ्टर दैट ही अगेन रीजॉइन। ओके, तो ऐसे 2-3 लोग हैं जो कि शुरुआत में ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में आके अटेंडेंस के लिए वापस ज्वाइन कर रहे हैं। आई विल टेल यू नेम। ओके, नेम बताऊंगा उनका जल्दी। ठीक है? ओके, एनीवे, Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you.